Hello everyone and welcome back to my channel. So I'm back again with another video lecture that is based on common errors. Usually students ये errors करते हैं and a little attention and a little you can say concentration is going to help you a lot in speaking and writing correctly. So the common error is he keeps his word always. So instead of saying this, the correct version is he always keeps his word. वो हमेशा अपने वादा निभाता है, अपने शब्दों का पक्का. He always keeps his word का मतलब है वो वादा निभाता है. Next is he seldom is late for college. Seldom is another word for never. कभी भी नहीं. So he seldom is late for college. Wrong. आएगा क्या? He is seldom. He is never. So this is not to be used here. He is never late for college. वो कभी भी कॉलेज के लिए लेट नहीं होता. He always is punctual. हम यूजुअली ऐसे ही बोलते हैं जैसे हम हिंदी पंजाबी में बोलते हैं वो हमेशा टाइम ते आंदा, वो हमेशा टाइम दा पाबंद हुंदा. एंड दिस इज़ हाउ वी राइट ही ऑलवेज इज़ पंक्चुअल. राइट, वो हमेशा पंक्चुअल हुंदा. तो ये गलत हो गया. ही ऑलवेज इज़ पंक्चुअल इज़ रॉन्ग. इंस्टेड इट वुड बी ही इज़ ऑलवेज पंक्चुअल. So always is going to be at the right place, right? Then she is no enough strong to do this work. She is no enough. No, it's wrong. She is not enough. She is not strong enough to do this work. देखिए, she is no enough strong. हम नॉर्मली तो बोल सकते हैं नहीं नॉट इनफ स्ट्रॉन्ग, बट अगर सेंटेंस में यूज़ करना है तो दिस वुड बी रॉन्ग. She is no enough strong to do this work की बजाय correct version is she is not strong enough to do this task. So this side is of all correct ones and this side is of all wrong ones. Right? So wrong ones and right ones. She sings good. अच्छा गाती है वो. No, but this is wrong. Correct क्या आएगा? She sings well. अच्छा गाती है. She sings well, not good. She is very fool. No, this again wrong. She is a fool हो सकता है या she is very foolish. She is very fool is wrong. She is a fool or she is very foolish. He is very coward. वो बहुत डरपोक है. He is very cowardly. वो बहुत डरपोक है कि इंग्लिश होएगी he is very cowardly. He is very coward. और ये नहीं आएगा, वेरी नहीं आएगा, या आएगा ही इज़ अ कॉवर्ड बॉय. ही इज़ अ कॉवर्ड मैन. शी स्पीक्स मच स्लोली. बहुत धीरे बोलती है. तो इसके लिए क्या कहेंगे हम? मच स्लोली. इज़ इट करेक्ट? नो, दिस इज़ रॉन्ग. मच करेक्टली की बजाय आएगा शी स्पीक्स वेरी स्लोली, नॉट मच स्लोली. शी स्पीक्स वेरी स्लोली. आई एम वेरी सीनियर टू हिम. मैं उससे बहुत बड़ा हूँ, बहुत सीनियर हूँ उसका. I am much senior to him. अब यहाँ पे very नहीं आएगा और यहाँ पे much नहीं आएगा. She speaks much slowly wrong है, very slowly. और यहाँ I am very senior नहीं आएगा. मैं बहुत senior नहीं हूँ, मैं काफ़ी senior हूँ. I am much senior to him. Of course, she sings well. Of course, she sings well. की बजाय क्या सही है? Certainly she sings well. Certainly, surely, पक्के तौर पे वो अच्छा गाती है वो. He tells very another story. He tells very another story. और usually ये वो mistakes हैं जो generally देखी हैं मैंने आसपास. He tells very another story. He tells quite another story. वो बिल्कुल अलग story सुना रहा है. Quite another. Different है. Not very another. बहुत अलग story नहीं है उसकी. Quite another story है. It matter not if we are rather very sad today. आज हम बहुत दुखी हैं. We are rather very sad today. So the correct one is we are simple very sad today. Not we are rather very sad. No, it's we are very sad today. Next, it matter not if I don't get it. कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मुझे ये नहीं मिलेगा. It matter not. But ये गलत है. It matter not is wrong English. क्या आएगा? It doesn't matter. It does not matter or it doesn't matter if I do not get it. Writing में ध्यान रखिए आपको पूरा ही लिखना होता है. It does not matter if I do not get it. कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मुझे ये नहीं मिलता है. But when you speak, you instead of writing or saying this correct full, you can use contractions. So it can be this. I doesn't.
or it doesn't matter. Sorry, I doesn't is wrong. I don't. Instead of this, we can use contraction here. I don't, right? Or otherwise, it doesn't matter if I don't get it. Next one. What if I do not call her? What if I do not call her? And what if I do not call her? It's all correct. It's all correct. अगर यहाँ ये भी हो what it if तो ये गलत है. Then it's wrong. The correct question is what if I don't call her? क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं उसको कॉल ना करूँ? He lost his job 10 years before. तो before is definitely wrong. क्या आएगा? Ago. जब बहुत सालों की बात आती है तो उनके साथ ago लगता है, before नहीं आता. He lost his job 10 years ago, not before, ago. She asked to me many questions. She asked to me. उसने मेरे से क्वेश्चन पूछे. अब अगर हम लिटरल ट्रांसलेशन करने बैठे तो डेफिनेटली बच्चे इसको ऐसे इंग्लिश बनाएंगे. शी आस्क्ड टू मी. उसने मुझसे क्वेश्चन पूछे, राइट? बट करेक्ट इज शी आस्क्ड मी. शी आस्क्ड मी मेनी क्वेश्चंस. उसने मुझे काफ़ी प्रश्न पूछे. लिसन व्हाट आई से. सुनो मैं क्या कह रही हूँ. लिसन व्हाट आई से. बट ये गलत है. लिसन के साथ हमेशा ही हम यूजुअली कह देते हैं सिंगिंग इज़ माई हॉबी, राइट? एंड आई लव लिसनिंग म्यूज़िक. नो, इट्स लिसनिंग टू म्यूज़िक. यहाँ पे लिसन के साथ टू आएगा. सो लिसन टू व्हाट आई से. ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ. I have applied the principal for leave. I have applied the principal. मैंने प्रिंसिपल को थोड़ा ना अप्लाई किया. मैंने प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल के आगे एप्लीकेशन रखी है, उनको कहा है कि मुझे छुट्टी दें. सो आई हैव अप्लाइड टू द प्रिंसिपल और प्रिंसिपल. अब यहाँ पे द की बजाय तो टू लगा दिया, बट ये द अगर मिसिंग है देन इट्स रॉन्ग बिकॉज प्रिंसिपल इन इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई हैव अप्लाइड टू द प्रिंसिपल फॉर लीव. मैंने अप्लाई कर रखा है, मैंने अर्जी लगा रखी है. किसके लिए? लीव के लिए. शी बोस्ट हर ब्यूटी. वो अपनी ब्यूटी की डिंगे मारती है. बोस्ट होता है फड़े मारना, बड़ी बड़ी बातें करना. सो शी बोस्ट ऑफ, इसके साथ ऑफ आएगा ही. शी बोस्ट ऑफ अ ब्यूटी. वो अपनी ब्यूटी की डिंगे मारती है. पंजाबी दे विच वो अपनी सुंदरता दियाँ फड़ा मारती है, राइट? शी बोस्ट ऑफ. डू नॉट शर्क फ्रॉम वर्क. अब हिंदी या पंजाबी है काम से जी ना चुराओ. पंजाबी भी है, काम तो जी ना चुराओ. तो क्या ये सही है? डू नॉट शर्क फ्रॉम वर्क. ये गलत है, ये गलत है. आपको लग रहा होगा सही है, काम से जीना ना चुराओ, राइट? बट ये गलत है. सही वर्जन है डू नॉट शर्क वर्क. काम चोरी ना करो. डू नॉट शर्क वर्क, या काम से मन ना चुराओ. ट्रस्ट गॉड. भगवान पे विश्वास रखो. ये करेक्ट है? नो, दिस इज़ रॉन्ग. ट्रस्ट इन गॉड. हैव अ फेथ इन गॉड. भगवान पर भरोसा रखो. अब कहते तो हम पर हैं, बट लिखने में वो में आता है. भगवान में भरोसा रखो, राइट? जैसे हम कहते हैं अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, राइट? गिव मी समथिंग. अल्लाह के नाम पर, ऑन द नेम नहीं आएगा. दैट कैन नॉट बी ऑन द नेम. जैसे हम यूजुअली कह देते हैं, तो यहाँ पे ऑन द नेम नहीं आएगा. ऑन द नेम ऑफ गॉड, नो, इट्स रॉन्ग. आएगा इन. ये गलत है. करेक्ट है इन द नेम ऑफ गॉड. भगवान के नाम पर. ये कागजात उसके नाम पे इशू हो चुके हैं. द पेपर्स हैव बीन इशूड in his name, not on his name. Be careful about it. Next है we enjoyed at the match. मैच पे enjoy किया कि मैच को enjoy किया? So we enjoyed the match. At times additional word also spoils the meaning. We enjoyed, it's done. I caught him from the ear. मैंने उसे कान से पकड़ा. उसके कान से पकड़ा, राइट? आई कॉट हिम फ्रॉम द ईयर. नो, इट्स अगेन रॉन्ग. आई कॉट हिम बाय द ईयर. मैंने उसका कान पकड़ा. मैंने उसके कान से पकड़ा उसे. ही डाइड फ्रॉम कोविड-19. वो कोविड-19 से मर गया. से मर गया, राइट? फ्रॉम सही लग रहा है, बट दिस इज़ रॉन्ग. करेक्ट वर्जन क्या है? डाइड के साथ ऑफ आना. ही डाइड ऑफ कोविड-19. He died of COVID-19, not from COVID-19. एक बहुत इम्पॉर्टेंट और करेक्शन.
यूजुअली जब हम बात करते हैं डेजिग्नेशंस की या किसी डिग्री की, जैसे ही इज़ अ LLB, ही इज़ अ SP, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं तो वहाँ पे स्पेसिफिकली ए एन दो की डिवीजन जब करते हैं हम कि कहाँ ए यूज़ होना है कहाँ एन, वहाँ पे ये आती है चीज़। ही इज़ एन LLB, शी इज़ एन MA BEd। तो डिग्रीज जब हम क्वालिफिकेशन बतानी है वहाँ भी एन लगता है। और ये डेजिग्नेशन है कि वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है SP, उसका अगर शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो ही इज़ एन SP। डेजिग्नेशन क्वालिफिकेशन दोनों के साथ एन एन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स जिनको पेपर में आर्टिकल्स आते हैं। देन नेक्स्ट, आई एम इंडियन राइट, बट यू आर एन यूरोपियन। अब आपको लग रहा है ठीक है, बिल्कुल सही है, यूरोपियन राइट। ई साइलेंट है, य आ गया और यहाँ एन लगना चाहिए भाई, वाउल साउंड आ गई, बिल्कुल रॉन्ग। इसको कैसे देखेंगे, लेट मी शो यू। यू जो है आपका, यू गिव्स टू साउंड्स, यू फॉर अम्ब्रेला राइट, व्हाट इज द साउंड, अम्ब्रेला, ओ। And another word is unique, right? So here the sound is U. So when U is sounding as A, we use an umbrella. But if it is sounding U, it would be a unique touch. Oh, I hope difference is clear. जब यू अ की साउंड देगा तो एन लगेगा, जब यू यू की साउंड देगा तो वहाँ पे हम ए लगाएंगे। इट इज़ ओनली मैटर ऑफ आर्टिकल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो याद रखना है, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी ट्रबलसम, आप मार्क्स गवा सकते हो पेपर में। सो आई एम एन इंडियन, इट्स करेक्ट, बट ही इज़ अ यूरोपियन, नॉट एन यूरोपियन राइट, क्योंकि इसको देखना है ई इज़ साइलेंट। ऐसे ही ऑनेस्ट में एच साइलेंट है तो ओ को देख के हम लगाते हैं एन ऑनेस्ट। सिमिलरली यहाँ पे ई इज़ साइलेंट और यू को देख के हम लगाएंगे ए। सो सम मोर सेंटेंसेस, दिस इज़ अ बॉय हु वन द प्राइज। सो दिस इज़ द बॉय हु वन द प्राइज। इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग, लग रहा है आपको कुछ गलत? दिस इज़ द बॉय हु वन द प्राइज, ये वो लड़का है जिसने प्राइज जीता। इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। और क्या गलत है? येस, देयर इज मिस्टेक, ही इज़ अ बॉय, ये एक लड़का है जिसने प्राइज जीता। जबकि हम एक की बात कर रहे हैं, स्पेशल की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर की, तो द आएगा इसकी बजाय। ही इज़ द बॉय, ये स्पेशली वही लड़का है, ही इज़ द बॉय हु वन द प्राइज, ये वो लड़का है जिसने प्राइज जीता। और तो मतलब कोई लड़का हो गया यहाँ। नेक्स्ट देखिए, हायर यू गो कूलर इट इज़। जितना ऊपर जाओगे, जैसे पहाड़ों पे भी जाते हैं, उतना ठंडा हो जाएगा। हायर यू गो कूलर इट इज़, बट करेक्ट क्या आएगा? द हायर यू गो द कूलर इट इज़। इट्स नॉट हायर द कूलर राइट। देन डीपर द वेल स्वीटर इज़ द वाटर। फिर से, द डीपर द वेल द स्वीटर इज़ द वाटर। डू नॉट मेक नॉइस, शोर ना मचाओ। अब बिल्कुल ठीक लग रहा है देखने में, बट करेक्ट क्या है? डू नॉट मेक अ नॉइस। इसको याद ही कर लीजिए, ये ऐसे ही आता है, डू नॉट मेक अ नॉइस। आई सॉ एन वन आइड मैन, आई सॉ एन वन। अब ओ की साउंड ऑरेंज ओ की बजाय वो, आई सॉ एन वन आइड मैन, क्या गलत है, क्या लगेगा यहाँ पे? अब जब ओ की साउंड ही चेंज हो गई तो यहाँ आएगा आई सॉ ए वन आइड मैन। वो की साउंड आ रही है वॉच की, तो अ वॉच, इसलिए अ वन। आई सॉ अ वन आइड मैन, मैंने एक आँख वाला आदमी देखा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट द गोल्ड। अब यहाँ पे गोल्ड स्पेशल है, इसके साथ द लगना चाहिए, बट बात किसकी हो रही है? ऑल दैट ग्लिटर्स, आम की बात हो रही है यहाँ पे। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, द नहीं आएगा यहाँ पे। ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जितना चमक है वो गोल्ड नहीं होता, या ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ही हैज़ नो मनी एंड नो लैंड।
तो अब अगर दो चीज़ों के लिए नो आ जाए, नो दिस नॉट दैट, इनको क्या करेंगे, यहाँ पे नाइदर नॉर लगेगा, जिसको नीदर नॉर और नाइदर नॉर दोनों बोलते हैं। ही हैज़ नाइदर मनी नॉर लैंड, ना उसके पास पैसा है ना ज़मीन है। ही हैज़ नाइदर मनी नॉर लैंड। तो ये नाइदर नॉर कहाँ यूज़ करेंगे, एग्जैक्टली दो चीज़ों से पहले, ना ये ना ये। ही हैज़ नाइदर मनी नॉर लैंड। आई होप यू आर गोइंग टू मेक सम सेंस। आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी, कुछ सेंटेंसेस आपके ज़रूर काम आएंगे। विद अ प्रॉमिस दैट आई विल सी यू ऑल वेरी सून। आई एम टेकिंग लीव ऑफ यू। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।